Good morning, students. Today we are going to start chapter 4 of geography. Name of our chapter is climate. So, see, this is the chapter. I hope all of you have done reading of this chapter. So, let us start this chapter. See, what do you mean by climate? Before knowing the climate, we should know the meaning of weather also, because these two words are running simultaneously. Now, listen, students, what these words mean. What do we mean by weather? Weather is an momentary, means, see, weather is an momentary condition. It means we say that in a डे टू डे बेसिस वेदर जो होता है वो हर रोज़ की होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ पे होता है. लाइक वी से हाउ इज़ द वेदर ऑफ मॉर्निंग, हाउ इज़ द सनी डे, इज़ एन इवनिंग, इज़ एन रेनी डे. Okay, so for example we can say how's the weather of morning, what is the weather in evening, did it rains last night, or it's going to be warmer tomorrow. So all these are the examples of a weather. So weather is a small phenomena. If we talk for the climate, what the climate means, see here, climate is a sum total of weather over a period of time. See, sum total means if we are adding a day to day, one day, second day plus third day, if we are adding all these days after a longer period we talk about 30 years or more than 30 years. Okay, so the longer period we talk, that is 30 or more than 30 years phenomena, is known as an climate. So climate is a sum total of a weather. After adding one by day to day weather conditions, it is converted into the climate. Okay, so what do we mean by the climate? Now I hope these 2 points are clear to you. Weather is a day to day activity, and climate is a sum total of a weather condition. Clear? So these are the two elements. Now the other elements, which are the other elements? So these are the 2 points. Now the other elements are, like we say, see this one, the elements. Which are the elements? These elements are the all examples. Pressure, see, we are talking, that is the pressure, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. These are the 5 elements. So if the question is asked how many elements do weather and climate have, then weather and climate have 5 elements. So all these are the 5 elements which are here. Okay, these are temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. Clear? So these are the atmosphere or weather temperature. These are the elements. Now what do you mean by monsoon? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मानसून? मानसून इज डिस्क्राइब, अगर पूछा जाता है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है हमारा कंट्री. फाइन. सो इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स एज अ मानसून. इंडिया का क्लाइमेट किस फॉर्म में हम कहते हैं? यहाँ पे हम जो है वो हमारे सीजन्स को हम मानसून के फॉर्म, मतलब रेनी सीजन को हम मानसून कहते हैं. फाइन. नाउ सी हियर, what is written here? In Asia, this type of climate is found mainly in the South and Southeast Asia. See now, where is the South and the Southeast Asia? Just a minute. Okay, in next slide I will show to you. So where is the South and the Southeast Asia? We will talk that the complete India, if we are talking about the India, then the complete India lies in the South Asia and the Southeast Asia, like this side area, complete this area is lying in the Southeast Asia. Okay, now let us see the other 2 elements, the 2 types of the 2 important elements कौन से हैं? That is temperature and precipitation. Now what do you mean by temperature? Okay, let us see what do we mean by temperature. Just व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? नाउ देखो, सबसे पहले हम टेम्परेचर के अंदर देखते हैं. समर के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है.
Fine. So in summer in Rajasthan we have 50 degrees Celsius temperature. At the same time in Jammu and Kashmir we have 20 degrees Celsius temperature. If we talk in the winter, then in winter in Jammu and Kashmir we have minus 45 degrees Celsius, and in Thiruvananthapuram, that is in the Kerala, we have temperature of 22 degrees Celsius. So what this says, the temperature varies. In the same country we see the temperature in the northern and in southern hemisphere it is varying with the same season. Like summer के अंदर जब राजस्थान के अंदर 50 डिग्री होता है, तो समर में ही जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है. एट द सेम टाइम इन द विंटर इफ़ वी टॉक, तो विंटर के अंदर अगर हम इनका बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है नॉर्थ में, तो साउथ में जाता है 20 डिग्री सेल्सियस तक का. सो दिस इज़ द टेम्परेचर दैट इट क्रिएट्स अ variation. Next one is precipitation. Now what do we mean by precipitation? Precipitation we normally say is that is the rainfall. जो बारिश आती है या जो रेन होती है, रेनफॉल होता है, that is called precipitation. Now listen, what do we mean here now? Precipitation क्या होता है? Okay, see this one. While precipitation क्या है? While precipitation is a snowfall in the upper part of Himalayas. हिमालयस के अपर पार्ट में हम बारिश इतनी नहीं देख सकते, वहाँ पे स्नोफॉल ही होता है क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, सो इट कन्वर्ट्स इनटू द स्नो. ओके, सो इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयाज वी हैव द स्नोफॉल, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन. वो भी हमारा प्रेसिपिटेशन ही होता है. Then in the upper part, and over the rest of the country the annual precipitation is around 400. क्या है annual precipitation? annual मतलब होता है कि एक साल के अंदर बारिश कितनी देखने को मिलती है. 400 सेंटीमीटर इन द मेघालय टू 10 सेंटीमीटर इन द लद्दाख और इन द पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पे इतनी बारिश देखने को मिलती है. यार कि हम कह सकते हैं कि इफ़ वी आर टॉकिंग फॉर द प्रेसिपिटेशन. Okay, so see what is the precipitation. Here is the low precipitation in the Rajasthan. Okay, and here we used to say high precipitation. high मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे कम बारिश देखने को मिलती है. क्लियर? सो दिस इज़ द लो एंड हाई. सी हेयर यू कैन ऑल्सो अगेन सी, ये जो होता है वो हाई प्रेसिपिटेशन वाला एरिया हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि हमारा इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून ही आता है. अगर हम पूछे विच टाइप ऑफ मानसून इंडिया हैव साउथ वेस्ट मॉनसून. ओके, इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून देखने को मिलता है जो कि यहाँ से आता है. इन द मंथ ऑफ जून, फ्रॉम 1st June मॉनसून स्टार्ट्स इन आवर कंट्री. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. आफ्टर दिस नाउ प्रेसिपिटेशन का जो मैंने आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? सी द काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, वी डोंट से ओनली द रेनफॉल इज द प्रेसिपिटेशन. येस, रेनफॉल इज द प्रेसिपिटेशन, बट अदर सोर्सेज आर, दैट इज द फर्स्ट वन रेनफॉल, देन द स्नो मैंने आपको भी बताया था, दैट इज हिमालयाज, वहाँ पे स्नोफॉल होता है. स्लिट्स एंड हेल्स, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ precipitation. See, you can see there pictures also, rainfall, snowfall, slates and the hails. Okay, so these are the parts of precipitation. तो अगर आपसे कोई पूछे precipitation is only rainfall, then we will say no. snowfall होता है, वो भी है, hails है, still है, वो भी सारे हमारे precipitation के ही parts होते हैं. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर नाउ क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट कि मानसून क्या है, क्लाइमेट क्या है. आई होप दीज आर क्लियर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मानसून, व्हाट इज़ द समर इन क्लाइमेटिक कंडीशन, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन. मीन्स यहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात करी, यहाँ पे हमने प्रेसिपिटेशन की बात करी, जो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे बताए गए. एंड prior to this we used to do here also. See, these are the 5 elements for the climate. Okay, and weather conditions को लेकर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं. नाउ आई वॉज टॉकिंग फॉर द साउथ ईस्ट. देखिए ये वाला है आपका साउथ ईस्ट रीजन, दैट इंडिया, इन द इंडिया वी हैव साउथ एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर, एशिया के अंदर, इन एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया लाइज इन द एशियन कॉन्टिनेंट. तो हमारा साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर जो है वो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या मॉनसून सीजन हम जो है वो बोलते हैं यहाँ पे. सो साउथ में हम क्या कहते हैं, इंडिया इज़ द कंप्लीट पार्ट एंड ऑल दीज आर द अदर साउथ ईस्टर्न
countries. Okay, like we say here, the Myanmar, Bangladesh, Cambodia, Laos, Vietnam, Indonesia, or Philippines, all these are the southeast countries. Okay, so this is basically this, sorry, basically this is the part of Southeast Asia. Clear? Now next one is, I this is already done. Now come to this next page. What here it is written? Now see here, क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है? 5 थिंग्स, सॉरी अगेन 6 थिंग्स, नॉट 5, बट क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय द 6 मेजर कंट्रोल्स और 6 मेजर थिंग्स विच कंट्रोल्स द क्लाइमेट. कौन सा है? एक तो है एल्टीट्यूड है, जो यहाँ पर है लैटीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ्स. इन सबको हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यू जस्ट डू द रीडिंग ऑफ दिस फ्रॉम दिस पेज, ओके, एंड इवन डू दिस रीडिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो दैट द क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट को 6 तरीके से कंट्रोल किया जाता है. एंड दीज आर द एल्टीट्यूड्स, latitudes, altitudes, wind pressure, and then the distance from the sea, ocean currents and relief. These should be known by you, very means it should be known by you. Okay, पता होना चाहिए कि क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. देखो हमने यहाँ पे पहले बात करी थी इसकी, क्या है? लैटीट्यूड ना. सो व्हाट डू वी मीन बाय लैटीट्यूड्स? एंड अकॉर्डिंग टू दिस द क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड. ओके, so let us see the latitude first point. Sorry. So latitudes are this slanting line and longitudes are this horizontal line, सॉरी वर्टिकल लाइन. ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि लैटीट्यूड्स होते क्या है. लैटीट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जो ये आप अर्थ के ऊपर ग्लोब पे ये सारा देख रहे हो. लॉन्गिट्यूड इज़ एन वर्टिकल लाइन, जो हम पूरे मैप में जो है या पूरे ग्लोब में हम इस तरीके से लाइन्स को देखते हैं. सो दीज आर द लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सबसे पहले बात करी थी लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की. देखिए किस तरीके से इफेक्ट करता है. दिस पार्ट, इफ़ वी आर टॉकिंग दिस मच, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या होता है कि ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नॉन एज एन ट्रॉपिकल जोन. क्लियर? एंड सी हियर इंडिया इज लाइंग इन द ट्रॉपिकल जोन. देखिए आप मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंडिया का जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से निकल रही है वो हमारा गुजरात से निकलती है. सो वी मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न इंडिया तो कम्प्लीटली ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है और नॉर्दर्न इंडिया को हम सब ट्रॉपिकल जोन के अकॉर्डिंग लेते हैं. फाइन, क्योंकि ये इसी से रिलेट है. सो फर्स्ट पॉइंट वी से दैट इज़ द लैटीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट कंट्रोल को. फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन यहाँ पे कंट्री के अंदर रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज लाइंग टू साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. वी नोज वेरी वेल अबाउट दिस थिंग एंड रिमेनिंग पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन. तो ये वाला आपका आता है ट्रॉपिकल जोन. सो अब क्लियर होना चाहिए ट्रॉपिकल जोन क्या है. ट्रॉपिकल जोन इज द जोन विच लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड दीज ट्रॉपिकल रीजन्स आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन साउथ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे नॉर्थ में है. तो ये करता है इफेक्ट क्लाइमेट को. अब किस तरीके से ये इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, सी हियर. दिस इज़ द ट्रॉपिकल जोन. मैंने अभी आपको बोला जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है वो ट्रॉपिकल जोन होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है. जब हमारा सन का रेज जो होता है वो यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो है वो सन की रेज जो है वो गिरती है इस पार्ट के ऊपर, यानी कि इतने पार्ट के ऊपर डायरेक्टली सन की रेज जो है वो आती हैं. सो दिस इज़ हैविंग अ हाईएस्ट और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन रिसीव एरिया. फाइन. अगर हम जैसे ही ट्रॉपिकल एरिया यानी कि जैसे ही हम इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ से हम दूर जाते जाएंगे, सन की रेज स्लैंटिंग होती जाती है. स्लैंटिंग होगी इट मीन्स वी विल गेट द लेस हीट. सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड फॉर दिस.
ये देखिए, यहाँ पे तो सन की रेस सीधी गिर रही है ट्रॉपिक के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। जैसे ही हमारा अर्थ के लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया था अभी ये वाली लाइन, जैसे ही ये लैटिट्यूड्स जो है वो दूर दूर जाती हैं, सन की रेस जो है वो स्लैंटिंग होती हुई चली जाती है, यहाँ से भी स्लैंटिंग। यानी कि जो पार्ट इक्वेटर के पास है दैट इज़ द वार्मर पार्ट, जो पार्ट इक्वेटर के पास होता है वो है क्या है, वार्मर, और जो दूर दूर जाता जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोल्डर पार्ट। ओके, दैट इज़ वाई ओनली इफ़ वी सी द अपर पार्ट, हमारा अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था दैट द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ तक मैंने बताया था, कैंसर तक बताया था, नॉर्थ के अंदर। तो नॉर्थ के ऊपर देखो यहाँ तक तो वार्मर एरिया होता है, इसके ऊपर हमारा हिमालयाज आता है, दैट इज़ इन दी सब ट्रॉपिकल जोन। ओके, तो जब सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर जब हिमालयाज आता है तो वो हमारी कोल्ड एरिया के अंदर आता है, दैट्स वाई वी विल सी द लेस सन हीट, एंड ड्यू टू द लेस सन हीट वी सी और वी हैव देयर द स्नोफॉल, इसीलिए हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, या हमें स्नो देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड रीजन होता है और सन से वो दूर चला जाता है, वार्म करंट या वार्म एयर्स हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। सो आई होप अप टू दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर नाउ। सो दिस वन फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर, पहले क्लाइमेट कंट्रोल का एक पॉइंट हम कर चुके हैं, लैटिट्यूड। नेक्स्ट वन इज़ एल्टीट्यूड। ओके, अब क्या होता है एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट से, हाइट का मतलब होता है कि ये देखिए एक मिनट, ये देखिए माउंटेन्स की हाइट कितनी है। ओके, इफ़ वी गो वी सी, इफ़ वी आर सीइंग फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से जब हम काउंट करते हैं तो जैसे जैसे हम